A question of trust, line by line, Hindi translation with important vocabularies, footprints without fit. Important. Let's see some important vocabularies. Trust, विश्वास, faith or belief in the reliability of someone. Citizen, legally recognized subject or national of a state. Housekeeper, person employed to manage a household. High fever, an allergy affecting nose, throat caused by pollen or dust. Robbery, action of robbing someone unlawfully. Electric wiring means system of wires used in electricity supply. Burglar means सेंध लगाने वाला, राइट. एन इलीगल इंट्रूडर, ornament, आभूषण, गहने. A thing used to make something look more attractive. Desperate, निराश, right. Showing a reckless, despairing quality. Arrest, गिरफ्तार. Seize someone by legal authority. Assistant librarian, सहायक ग्रंथपाल. Person who helps in a library. Honor among thieves मीन्स चोरों के बीच आपसी वफादारी या ईमानदारी. A code of ethics shared by criminals. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर कोई सोचता था कि होरेस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था. He was about 50 years old, unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. वह लगभग 50 वर्ष का अविवाहित था और वह एक ऐसी गृहिणी देखभाल करने वाली के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहती थी. In fact, he was usually very well happy except for attacks of high fever in summer. वास्तव में गर्मियों में हे फीवर के दौरान से होने वाली एलर्जी के दौरों को छोड़कर वह आमतौर पर बहुत स्वस्थ और खुश रहता था. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. वह ताले बनाता था. अपने व्यवसाय में इतना सफल था कि उसके पास 2 सहायक थे. S. Horace Denby was a good and respectable but not completely honest. एक अच्छा था, आदरणीय था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस ने जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और एकमात्र सजा काटी थी. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. उन्हें दुर्लभ, महंगी किताबें पसंद थी, इसलिए वह हर साल एक तिजोरी चुराता था और तोड़ता था. Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. हर साल वह सावधानी से योजना बनाता था. वह क्या करेगा. 12 महीने तक चलने लायक पर्याप्त धन चुराता था और एक एजेंट के माध्यम से अपनी पसंदीदा किताबें चुपचाप खरीद लेता था. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. अब जुलाई की तेज धूप में चलते हुए उसे पूरा विश्वास था कि इस साल की डकैती भी वह अन्य सभी की तरह सफल होने जा रही है.
For 2 weeks, he had been studying the house at a shot over Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. 2 सप्ताह से वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज में घर का अध्ययन कर रहा था, उसके कमरों, उसकी बिजली के तारों, उसके रास्तों और उसके बगीचे को देख रहा था. दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. आज दोपहर वे दोनों नौकर जो परिवार के लंदन में होने पर ग्रेंज में ही रुके थे, फिल्म देखने गए थे. Horace saw them go and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose. होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और नाक में ही हे फीवर की थोड़ी सी खिचखिच के बावजूद वह खुश महसूस कर रहा था. ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, ही टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. वह बगीचे की दीवार के पीछे बाहर से आया, उसके उपकरण सावधानी से उसकी पीठ पर एक बैग में पैक थे. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5. ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के आभूषण थे. अगर वह उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे से कम 5 मिलने की उम्मीद थी. 1,000 enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming from for sale in autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. 1,000 पाउंड मिलते जो उसे एक और साल के लिए खुश रखने के लिए काफ़ी थे. शरद ऋतु में बिक्री के लिए 3 बहुत ही दिलचस्प किताबें आने वाली थी. अब उसे उन्हें खरीदने के लिए मनचाहा पैसे मिल जाता. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने गृहिणी को रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर एक हुक पर लटकाते देखा. उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला. वह हमेशा कोई भी उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट ना छोड़ने के प्रति सावधान रहता था. अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन. इट स्टीयर्ड, मेड नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे. रसोई में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था. वह हिला, एक आवाज़ निकली और दोस्ताना तरीके से अपनी पूंछ हिलाई. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do, keep dogs quiet, was to call them by their right names and show them love. ठीक है सेरी, होरेस ने गुजरते हुए कहा, कुत्तों को शांत रखने के लिए बस इतना करना होता है कि उन्हें उनकी सही नाम से बुलाया जाए और उन्हें से प्यार दिखाया जाए. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room. In a small house, books were better. तिजोरी ड्राइंग रूम में एक कॉफ़ी घटिया पेंटिंग के पीछे थी. होरेस ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उसे किताबों की बजाय तस्वीरें एकत्र करना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक जगह घेरती थी. एक छोटे घर में किताबें बेहतर थी. There was a great bowl of flowers on the table. As Horace felt his nose tickle, he gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. मेज पर फूलों का एक बड़ा कटोरा था और होरेस को अपनी
नाक में गुदगुदी महसूस हुई। उसने एक छोटी सी छींक दी और फिर अपना बगीचे बैग नीचे रख दिया। उसने सावधानी से अपने औजार व्यवस्थित किए। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद द लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him. And again, तिजोरी को खोलना कठिन नहीं होने वाला था। आखिरकार वह पूरी जिंदगी ताले और तिजोरियों के साथ रहा था। चोर अलार्म खराब तरीके से बनाया गया था। वह इसके तार काटने के लिए हॉल में गया। वह वापस आया और जोर से छींका क्योंकि फूलों की गंध उसे फिर से महसूस हुई थी। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting had a shape. लोग कितने मूर्ख होते जब उनके पास कीमती चीज़ें होती है। और इसने सोचा, एक पत्रिका के लेख ने इस घर का वर्णन किया था जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे की एक तस्वीर दी गई थी। लेखक ने यह भी उल्लेख किया है कि पेंटिंग के पीछे एक तिजोरी छुपी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। ही ब्यूरिड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ। लेकिन हॉरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा डाल रहे थे। उसने अपना चेहरा अपने रुमाल में छिपा लिया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड ऑफ है फीवर। तभी उसने दरवाजे से एक आवाज़ सुनी, यह क्या है, जुकाम या है फीवर। बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड, है फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इससे पहले कि वह सोच पाता हो, होरेस ने कहा, हे फीवर, और खुद को फिर से छींकते हुए पाया। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट, स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट gives you the disease. I think you had better see a doctor if you are the serious about your work. I heard you from the top of the house just now. आवाज़ ने आगे कहा, आप इसे एक विशेष इलाज से ठीक कर सकते हैं। आप जानते हैं, यदि आपको पता चल जाए कि कौन सा पौधा आपकी यह बीमारी देता है, मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए यदि आप अपने काम के प्रति गंभीर है। मैंने अभी अभी आपको घर के ऊपर से सुना। It was a quite kindly voice, but one with the firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sari was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in a red. She walked to the fireplace and strengthened the ornaments there. यह एक शांत दयालु आवाज़ की थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी और शेरी उससे रगड़ खा रहा था। उसके पास मचल रहा था। वह युवा काफी सुंदर थी और लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी। वह फायरप्लेस की ओर चली गई और वहाँ रखे सजावटी सामान को सीधा किया। Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in a time, though I didn't expect to meet a burglar. शेरी, उसने कहा, कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर थी। वह
होरेश पर मुस्कुराई और आगे बोली, हालांकि मैं ठीक समय पर वापस आ गई, हालांकि मुझे एक चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. हॉरेस को कुछ उम्मीद थी क्योंकि उससे मिलकर खुश मनोरंजन महसूस करती हुई प्रतीत होती है। यदि वह उसके साथ सही तरीके से पेश आए तो वह मुसीबत से बच सकता है। उसने उत्तर दिया, मुझे परिवार के किसी सदस्य से मिलने की उम्मीद नहीं थी। शी नोडेड, उसने सिर हिलाया। आई सी व्हाट अ इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मैं समझती हूँ कि मुझसे मिलना आपके लिए कितना असुविधाजनक है। आप क्या करने जा रहे हैं? हॉरिश सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। मेरा पहला विचार भागने का था। टू रन। ऑफकोर्स, बेशक, यू कुड डू दैट, आप ऐसा कर सकते थे। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। दे हैड गेट यू एट वंस। लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करती और उन्हें आपके बारे में सब कुछ बता देती। वे आपको तुरंत पकड़ लेते। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. होरेस ने कहा, मैं बेशक पहले टेलीफोन की तारें काट देता और फिर हिचकिचाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं यह सुनिश्चित मुझे करता कि आप कुछ समय के लिए कुछ ना करें। कुछ घंटे काफ़ी होते हैं। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी। उसने गंभीरता से देखा, तुम मुझे चोट पहुंचाते। हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। हॉरेस रुका और फिर बोला, मुझे लगता है कि जब मैंने कहा था तो मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। Horace suggested, it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. Horace ने सुझाव दिया, यह अच्छा होगा यदि आप भूल जाए कि आपने कभी मुझे देखा था। मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from me, men like you. आवाज़ अचानक तेज हो गई। मैं क्या करूं? तुम मुझे लूटने जा रहे थे। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम सिर्फ किसी और को लूटोगे। समाज की रक्षा तुम जैसे आदमियों से की जानी चाहिए। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason, and I had the thought of prison. होरेस मुस्कुराया, मैं समाज को धमकाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं से चुराता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। मैं बहुत अच्छे कारण से चोरी करता हूँ और मुझे जेल के विचार से नफरत है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वह हंसी और उसने सोचते हुए विनती की, उससे मना लिया। सुनिए, मुझे आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं लाचार हूँ। मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूँ कि इस तरह की चीज़ें कभी दोबारा नहीं करूँगा। मेरा वास्तव में यही मतलब है।
She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" वह चुप रही, उसे करीब से देखती रही। फिर उसने कहा, "तुम वास्तव में जेल जाने से डरते हो, है ना?" She came over to him, shaking her head. "I have always liked the wrong kind of people." वह अपना सिर हिलाते हुए उसके पास आई। "मुझे हमेशा से गलत किस्म के लोग पसंद आए।" She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her, seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने मेज से एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें एक सिगरेट निकली। होरेस उसे खुश खुश करने के लिए उत्सुक और यह देखकर वह उसकी मदद कर सकती है, दोस्ताना दस्ताने उतार दिए और उसने अपने सिगरेट लाइटर दे दिए। "यू विल लेट मी गो?" ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर। "आप मुझे जाने देंगे?" उसने लाइटर उसकी ओर बढ़ाया। "एस, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी।" हाँ, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। "एनीथिंग यू से?" आप जो कहे। "Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want them to a party tonight, so I came down to get them." But Horace smiled. "You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you?" लंदन के लिए रवाना होने से पहले मैंने अपने पति से अपने गहने हमारे बैंक ले जाने का वादा किया था, लेकिन मैं उन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ दिया। मैं उन्हें आज रात एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने नीचे आई। लेकिन होरेस मुस्कुराया। "आप तिजोरी खोलने के नंबर भूल गई है ना?" "यस," रिप्लाइड द यंग लेडी। उसने रिप्लाई किया। "जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। बस मुझ पर छोड़ दीजिए और 1 घंटे के भीतर वे आपके पास होंगे, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड ओंट बी हियर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द शेप मेंडेड बाय दैट टाइम." "उसकी चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं रहेंगे और तब तक मैं तिजोरी ठीक करवा लूँगी।" And within an hour Horace had opened the safe, given her jewels and gone happily away. 1 घंटे के भीतर हॉरेस ने तिजोरी खोल दी, उससे गहने दे दिए थे और खुशी खुशी चला गया था। For 2 days he kept his promise to kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew would have to look for another safe. 2 दिनों तक उसने दयालु युवती से किया, अपना वादा निभाया। हालांकि तीसरे दिन सुबह उसे अपनी मनचाही किताबों की याद आई और वह जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। बाय नून policemen had arrested him for the jewel robbery at a शॉट ओवर ग्रेंज, लेकिन अपनी योजना शुरू करने का मौका कभी नहीं मिला। दोपहर तक पुलिसकर्मी ने उसे शॉट ओवर ग्रेंज में हुई आभूषण चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। हिज फिंगर प्रिंट्स, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house and had asked him to open the safe for her. उसकी उंगलियों के निशान, क्योंकि उसने बिना दस्ताने की तिजोरी खोली थी, पूरे कमरे में थी और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि घर के मालिक की पत्नी उसे अपने लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था। द वाइफ हरसेल्फ, एट ग्रे हेयर्ड, शार्प टोंग्ड women of 60 said that the story was nonsense. खुद मालकिन 60 साल की एक भूरे बालों वाली तेज जुबान वाली औरत ने कहा कि यह कहानी बकवास थी। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was the same
profession as he was and who tricked him. He gets very angry when Aloy talks about honor among thieves. और ये जब जेल में सहायक ग्रंथपाल है, वह अक्सर उस आकर्षक चतुर यंग लेडी के बारे में सोचता है, तो उसे पेशों उसी उसी के पेशे में थी जिसमें वह थी और जिसने उसे धोखा दिया था। जब कोई चोर के बीच ईमानदारी की बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है।